Good morning, dear students. Today I welcome you all in math session containing tangents and normal part 2. Tangents and normal part 2. Tangents and normal part 2. As promised, we will see some different questions today that we have not covered in our first lesson. So let us see what kind of problems are being asked in CBSE. Example 1 I am taking. 2009 and 11, this question was asked. Find the points on the curve y is equal to x cube at which slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point. This is the problem. Let us read it again. Find the points on the curve y is equal to x cube at which slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point. That's a conditional point. You have not to find out the equation of tangent. You have to find out the point under given condition. Solution: given equation of curve is y is equal to x cube, differentiating with respect to x, we get dy by dx is equal to 3x square. Now, according to question, for required point we must have slope of tangent equal to y coordinate of the point, say y. This implies 3x square is equal to y. This implies y is equal to, here it is x cube. Equation number 1 says y is equal to x cube. So x cube is equal to 3x square. Using number 1 implies, इधर ले आइए, x square कॉमन, x minus 3 equal to 0. यहाँ से दो सॉल्यूशन मिलेंगे 0 and 3. तो when x is equal to 0, y will be 0 cube, that is 0. When x is equal to 3, y will be 3 cube, that is 27. Therefore, required points on 1 are 0, 0 and 3, 27. तो ये जो कंडीशन यहाँ लगाई गई थी, इस कंडीशन पे सबको विचार करना है कि ये कंडीशन में अप्लाई करने के बाद हम कैसे वाले पॉइंट्स निकालेंगे. ध्यान रहे, कंडीशन अप्लाई करने से जो इक्वेशन बनेगी और जो कर्व की इक्वेशन है वो दोनों इक्वेशंस को आपको एक साथ यूज करके सॉल्व करना है एंड यू आर गेटिंग द पॉइंट्स. तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन होता है बच्चों. आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा. मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं. ऐसे कंडीशनल प्रॉब्लम्स आपकी टेक्स्ट बुक में भी हैं. जानबूझ करके टेक्स्ट बुक वाला प्रॉब्लम ना करा के
आपको उसकी जैसा सिमिलर क्वेश्चन इसलिए कराता हूं कि जब आप उसको स्वयं अटेम्प्ट करें तो आपको इस बात की खुशी मिले कि आपसे वो सवाल बन रहा है। Very clear aspect of learning. Whenever a concept is given to you, using that concept, if you are able to solve a problem in different situation, then only it is supposed that the student has gained that concept and he is able to apply. So basic part is practice. प्रैक्टिस में आप जो लेसन ऑब्जर्व करते हैं उस लेसन से जो कंसेप्ट गेन करते हैं उस कंसेप्ट का यूज करके आप उसको सवाल को सॉल्व करिए। दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। Example number 2. This question was asked in CBSE 2013. Find the equations of tangents to the curve 3x square minus y square equal to 8, which passes through 4, 3, 0, 4 by 3, 0. तो आ जाते। So given equation of curve is 3x square minus y square is equal to 8. Differentiating with respect to x, we get 6x minus 2y dy by dx is equal to 0. From this you will get dy by dx is equal to 3x upon y. Let PHK be the point on one tangent at which passes through 4 by 3, 0. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी? स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 3 dy by dx की वैल्यू निकालेंगे h के पर, तो 3h अपान k, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 की जगह लेंगे h के पॉइंट है तो k इक्वल टू स्लोप 3h बाई k इंटू एक्स माइनस x1 यानी h। ठीक है, दिस इंप्लाइज y k माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 3h x माइनस h। इफ इट पासेस थ्रू 4 by 3, 0, we must have y की जगह 0 रखें तो माइनस k स्क्वायर और x की जगह 4 by 3 रखें तो 3h इंटू 4 by 3 माइनस h। दिस इंप्लाइज माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 4h माइनस 3h स्क्वायर। तो ये हो गया k स्क्वायर, उधर जाएगा माइनस 3h स्क्वायर प्लस 4h इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब ये एक इक्वेशन हमारी बन गई, लेकिन दूसरी इक्वेशन हमारे पास कैसे आएगी उसके ऊपर विचार करें कि वो जो पॉइंट हमने अज्यूम किया है वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा? कर्व पे। तो हम बोलेंगे आल्सो PHK lies on one, therefore 3 into h square minus k square equal to 8। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई 3 और 4, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। 3 प्लस 4 इम्प्लाइज 3h स्क्वायर कैंसिल माइनस k स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा 4h इक्वल टू 8, सो h इज इक्वल टू 2। तो h बराबर 2 आ गया, तो नंबर 4 विल इम्प्लाई
3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 8 इक्वल टू के स्क्वायर, यानी के इज इक्वल टू प्लस आर माइनस 2। अब हमारे पास दो पॉइंट बन गए, h की वैल्यू 2 है और k की वैल्यू या तो +2 होगी या -2 होगी। तो ये कर्व में देख लेते हैं दोनों पॉइंट। सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं? थ्री इंटू 2 स्क्वायर और यहाँ भी y स्क्वायर है तो ±2 का स्क्वायर वही रहेगा, तो 2 स्क्वायर 4, 3 जा 12 माइनस 2 स्क्वायर 4 8, मतलब बोथ पॉइंट लाई ऑन दैट कर्व। तो हमारे पास पॉइंट्स मिल गए। अब हमको ऐसे पॉइंट मिल गए जिन पर टेंजेंट खींचेंगे तो वो टेंजेंट जो है किसके पैरेलल होंगे, कहाँ से पास होंगे, 4/3, 0 से पास होंगे। तो अब क्या करना है, अब हमको उन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स हमको निकालना था। तो वो टेंजेंट्स की इक्वेशन जो है कैसे निकालेंगे, तो टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास यहाँ ऑलरेडी है। तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके, इसको ए बोल रहा हूं मैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2, 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ वैल्यू किसकी रखना है, ध्यान रखना h और k की। तो ये हो जाएगा 2y माइनस 4 इक्वल टू 3 2 जा 6, x माइनस h की वैल्यू 2, तो ये हो गया 2y माइनस 4 इक्वल टू 6x माइनस 12, सो 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 4। ये एक इक्वेशन है। जब इक्वेशन आप टेंजेंट एट 2, -2 निकालेंगे तो क्या फर्क आएगा, इसी में चेंज करके देखते हैं। वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2, -2 पे -2y माइनस 4 इक्वल टू 3 2 जा 6x माइनस 2, तो -2y माइनस 4 इक्वल टू 6x माइनस 12, हो जाएगा 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 and 4 12 प्लस 8, सो 3x प्लस y इज इक्वल टू 4। ये दूसरी इक्वेशन। इस प्रकार से दोनों हमने टेंजेंट की इक्वेशंस 2, 2 और 2, -2 तो पर निकाल ली। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन दिस length of the solution this question should be asked for 6 marks. So one more important problem we would like to discuss here, जो कि अक्सर CBSE में पूछा जाता है और आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, तो ध्यान से देखते हैं। 2002 में क्वेश्चन पूछा गया, show that the curves xy is equal to a square and x square plus y square is equal to 2a square touch each other। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ये दोनों कर्व एक दूसरे को टच करते हैं। टच करते हैं का मतलब क्या होगा, एक कर्व ऐसा होगा, दूसरा कर्व ऐसा, है ना, मतलब दिस पॉइंट विल बी कॉमन। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लें और जो कॉमन पॉइंट है उस पे दोनों की टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लें, तो आई होप दिस विल बी वेरी मच क्लियर। क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से y की वैल्यू a² उसमें रख दो, है ना, तो पॉइंट मिल जाएंगे आपको। और पॉइंट मिल जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं,
दोनों साइमल्टेनियसली सॉल्व करके उन पॉइंट्स पर टेंजेंट की इक्वेशंस निकाल लें, और अगर दोनों का कॉमन टेंजेंट आता है तो दोनों कर्व एक दूसरे को टच करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को बच्चों अगर आपने समझ लिया है तो अटेम्प्ट करिए। मैं इसको अभी यहाँ छोड़ रहा हूँ। एक और महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने है, ध्यान से देखिए। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन 2003 कंपार्टमेंट 2004, 2005, 2008. Show that the curves x is equal to y square and xy equal to k cut orthogonally if and only if 8k square equal to 1. बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, और इसमें कर्व की इक्वेशन में थोड़ा सा डाटा चेंज करके ऐसा प्रॉब्लम अलग अलग सेट्स में बना के पूछा जाता है। तो बहुत ध्यान से बच्चों इसका सॉल्यूशन देखेंगे। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व्स आर x इक्वल टू वाई स्क्वायर नंबर 1 एंड उसको दूसरी वाली को y इक्वल टू के अपान एक्स ऐसा लिख लो। इसे डिफरेंशिएशन में आसानी होगी आपको, है ना। अच्छा, पहले तो सॉल्विंग 1 and 2 वी गेट, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो y इक्वल टू के, एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर रख दो तो ये हो जाएगा वाई क्यूब इक्वल टू के, इससे मिलेगा y इक्वल टू के रेज टू दी पावर 1/3। ये y की वैल्यू है। y की वैल्यू निकलने के बाद x की वैल्यू निकालना है, तो नंबर 1 इंप्लाइज x इक्वल टू वाई स्क्वायर यानी k पावर 1/3 की पावर 2, सो x इज इक्वल टू k पावर 2/3। देयरफॉर 1 and 2 intersect at k raised to the power 2/3 and k raised to the power 1/3. This is the point of intersection of the two curves. Okay? अब हम differentiating one with respect to x, we get 1 is equal to 2y dy by dx implies dy by dx is equal to 1 upon 2y, है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट फर्स्ट की निकाल लो m1 dy by dx एट k रेज टू दी पावर 2/3 कॉमा k टू दी पावर 1/3, वो होगा 1 upon 2 k टू दी पावर 1/3। ये पहले कर्व के टेंजेंट की स्लोप निकल गई, है ना। और फॉर नंबर 2 डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx इक्वल टू माइनस के अपान एक्स स्क्वायर होगा। 1 अपान एक्स का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। इसकी टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे dy by dx एट पॉइंट वही k टू दी पावर 2/3 k टू दी पावर 1/3, तो ये आएगा -k अपान k टू दी पावर 4/3, तो ये हो जाएगा -1 अपान k, क्योंकि नहीं 1 माइनस होगा तो 1/3, -1 अपान k टू दी पावर 1/3। The two curves will cut orthogonally if and only if m1 into m2 is equal to -1। अगर पहले के टेंजेंट और दूसरे का टेंजेंट दोनों परपेंडिकुलर हैं तभी तो हम बोलेंगे कि वो ऑर्थोगोनली कट करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? तो दिस इंप्लाइज 1 upon 2 k to the power 1/3 into -1 upon k to the power 1/3 equal to -1, तो ये हो जाएगा 1 is equal to 2 k to the power 2/3, दोनों तरफ क्यूब कर दो तो 1 क्यूब इक्वल टू 8k स्क्वायर और 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही हमें प्रूव करना था।
With this, I am satisfied as a teacher that multiple types of problems have been discussed with you in tangent and normal. Now the exercise containing all problems of tangent and normal is left for you as PSP, problems for self practice, and exam oriented assignment may be given to you. You can have it from your Google Classroom and solve all those problems. Don't left any problem untouched, because complete solution gives complete practice. So wishing you all the best. Connect with me on Google Meet. There we will discuss many doubts and your problems will be okay, and some questions may be asked to you in order to check whether you have learned properly or not. Thank you.